Hey guys, welcome back to my channel. And today we have Anu with us, who has been selected for internship in Germany at Digital Product School as a software engineer intern. So she had the opportunity to go to Germany, but she didn't, and many of others also didn't, considering their own choices. So yeah, and today we will be discussing how she got to know about it and a lot of stuff about the same internship. Thank you so much, Sahaj. It's not a kind of like internship, but it's like a 3-month entrepreneur program where like people came from all over the world and they participate and all the applicant is like they have given a like problem statement which they have to like complete in 3 months and find a solution for that problem. And basically what we do is like for the first month we extract some user pain points against that problem statement which we have given, and after that the main idea is to build an MVP against the given user pain points and the given problem. So yeah, that is what basically digital product school is. So if you like the video, so subscribe to the channel and comment if you have any feedback or reviews, and you want any more content, if you have suggestion basically, and like and share. And also if you have any doubt regarding college life and like college tips and opportunities, so you can ping Sahaj. He's really sweet. Will definitely reply to you. Like I know him from my first year of college. So yeah. Yeah, thank you. Thank you for your kind words, Anu. And yeah, you can simply ping me on Instagram or message me on LinkedIn. I'll definitely reply you and help you in your good career. All right. And what is MVP, the term that you just mentioned? Okay, so MVP is like minimum viable product. तो minimum viable product is like तुम्हारा प्रोडक्ट कम से कम चीजों में अगर काम कर रहा है तो आगे तुम उसमें फीचर्स डाल सकते हो. तो जैसे हमारा कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है तो हमें उसका लाइक पहले एक मिनिमम सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए, और लाइक अगर वो मिनिमम सॉल्यूशन काम कर रहा है तो लाइक हमारा प्रोडक्ट आगे भी काम करेगा. व्हाट वी डू इज लाइक वी डू यूजर we extract user experiences and their pain points, and then we build a product, and then every week we iterate the solution. Like we always like एक्सपेरिमेंट लाइक ये सॉल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं, लाइक इसमें कुछ जो भी हमें, फिर देन वी लाइक शो इट टू आवर यूजर्स कि लाइक हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, एंड इफ इट इज लाइक वर्किंग और नॉट, और लाइक गेट देयर फीडबैक, एंड like each and every step we modify our product. So that is kind of what we do in 3 months. All right. So basically, to summarize, to achieve a single thing, there are multiple ways, right? And MVP is basically to achieve that particular thing in the minimum possible ways. I mean, Yeah, least number of steps में as well as least number of resources use करके जो भी आप उस मतलब like exactly. उस aim को achieve कर पा रहे हो, that is MVP, right? And that is what Yeah. you do in 3 months. Yeah, and the most important thing is like जो उनकी कोर टीम है, like वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा गाइडेंस देती है. like अगर मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया है, तो लाइक इवन अपार्ट फ्रॉम माय टेक्निकल साइड्स, लाइक मेरे एंटरप्रेन्योर स्किल्स और लाइक जो एक बिजनेस इनोवेशन होता है तुम्हारा, लाइक ये स्किल्स तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बिल्ड होती है. लाइक तुम एक टीम में वर्क कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ प्रोडक्ट मैनेजर, एंड लाइक देयर आल्सो एजाइल टीम कोच एंड मार्केटिंग टीम. सो लाइक तुम इतने लाइक टीम के साथ वर्क कर रहे हो, तुम तुम्हारा एक जो एक एंटरप्रेन्योर स्किल होता है, लाइक एक प्रोडक्ट बनाना, तो वो वाली स्किल जो होती है ना, इन सब चीजों पे वो लोग बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ ध्यान देते हैं. सो दैट इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवेज ऑफ दैट प्रोग्राम. सो बेसिकली जो चीज़ें इंडिया में फोकस नहीं होती स्पेसिफिकली, वो एग्जैक्टली, वहाँ पे या ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इंडिया में यूजुअली जो लोग हैं वो सारा का सारा टेक पे फोकस करते हैं, अपनी स्किल्स पे फोकस करते हैं, बट वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते विच इज़ लाइक सॉफ्ट स्किल्स एंड मैनी अदर स्टफ लाइक दैट. सो उन पे फोकस नहीं होता, वेयर एज
फॉरेन कंट्रीज में ऑब्वियसली उस पर भी काफी एम्फेसिस होता है, विच काइंड ऑफ साउंड्स लाइक ट्रू इन योर प्रोग्राम. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच आई फाइंड इज लाइक मैंने इंडिया में बहुत देखा है, लाइक हम हमेशा लाइक प्रोडक्ट बनाने पे ज्यादा फोकस, बनाने पे एज इन के लाइक हमें ये टेक्निकल चीजें ये डालनी ये वो करके, बट वो लोग एक जो कहते हैं ना एक एम्पथी के साथ काम करते हैं, लाइक यूजर्स की एम्पथी को देखते हैं कि लाइक उनके लिए क्या सही है ये वो, एंड लाइक हर एक ईच स्टेप पे वो उनसे लाइक फीडबैक लेते हैं एंड देन अपने प्रोडक्ट को एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं. एंड ऑल्सो लाइक जो हमारी टीम है उसमें जो लाइक एक जो बोलते हैं ना टीम बिल्डिंग स्किल्स, लाइक एक जो टीम में लाइक ट्रस्ट होता है, इस पे ये लोग बहुत वर्क करते हैं. लाइक हर वीक हमारे रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, लाइक हम अपनी टीम को और लाइक इवन अपनी कम्युनिकेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं, लाइक और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें दूसरों के सामने, और लाइक अगर दूसरा सामने जो बंदा है लाइक उसमें हमें कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक पीटर है एंड वो बहुत बोलता है, लाइक फर्स्ट जब हम उससे पहले मिले तो हमें लगा कि लाइक ओ ये ठीक है बोलता है ये, बट फिर आगे मीट में हमें पता चला लाइक ओ माय गॉड ये बहुत ही ज्यादा बोलता है. तो लाइक उस चीज को कैसे हम टैकल करें, एंड लाइक पीटर को कैसे बताए कि पीटर तो बहुत ज्यादा बोलता है. तो लाइक ये सारी चीजें हमें सिखाते हैं, लाइक विच इज द बेस्ट थिंग. और लाइक तुम्हें आई डोंट थिंक सो लाइक मैंने अभी तक मेरी जितनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है लाइक मैंने उसमें ये चीजें नहीं देखी. सो लाइक दिस इज द लाइक a huge advantage nice of joining there. yeah. So basically whoever is interested in building a startup of his own, तो उसके लिए भी काफी एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ जाना, बिकॉज एक काफी ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, जो कि अगर वो इंडिया में स्टार्टअप भी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो नेसेसरी थिंग्स है वो उनको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगी, राइट? मतलब जिसको एक स्टार्टअप में वर्क करना है, लाइक हम इंडिया में ज्यादातर मैंने देखा है लाइक हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट हमने बस सुना होता है लाइक हाँ स्टार्टअप स्टार्ट करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है ये वो, और लाइक हम 2-3 यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं लाइक उससे मोटिवेट हो जाते हैं, बट वी डोंट नो द लाइक एग्जैक्ट प्रोसेस, और लाइक एक टीम में काम करना क्या होता है, एक प्रोडक्ट पे काम करना होता है. तो ये चीज लाइक इस चीज पे लाइक डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल जो बहुत ही ज्यादा फोकस करता है. सो या लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम लाइक जब मेरे फर्स्ट वीक और लाइक फर्स्ट डे था, सो इट वाज लाइक फॉर मी कि लाइक मुझे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट एंड लाइक फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज होंगी और लाइक रिज्यूमे में जो हाईलाइट होगा डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल, सो मेरा आइडिया यही था. बट आगे चल करके लाइक मैंने अभी तक जितना देखा है लाइक इनका माइंडसेट लाइक ये होता है कि लाइक तुम एक प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बना सकते हो. लाइक ऑलराइट, सो दिस वाज लाइक एन होल ओवरव्यू कि क्या क्या होता है डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल में एंड कैसा सब कुछ चलता है वहाँ पे एंड किस चीज़ों पे वो फोकस करते हैं नहीं करते हैं. एंड कमिंग ऑन टू like how did you get to know about this program, because obviously I'm sure बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स होंगे जो प्रेफर करेंगे एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने का. सो आर देयर एनी मोर सच प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप्स, और एंड हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस वन एज वेल? सो लाइक ऑब्वियसली ये जैसे एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, सो लाइक तुम्हारे रिज्यूमे में तो काफी हाईलाइट करता है, लाइक तुम्हारे लिए एक गेट खोल देता है लाइक एक इंटरनेशनल एक्सपोजर का. और लाइक जैसे मैं भी रिमोट वर्क कर रही हूँ, तो लाइक इसका ये भी एडवांटेज होगा कि लाइक हाउ आई नो लाइक रिमोट वर्क कल्चर में काम करना, और लाइक जब तुम्हारे टाइम जोन डिफरेंट होते हैं उसमें कैसे काम करते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द लाइक मुझे लाइक कहाँ से पता चला एंड लाइक मोर रिसोर्सेज अबाउट दैट, सो आई फाउंड आउट अबाउट इट फ्रॉम लाइक देयर वाज अ कम्युनिटी ऑफ कोडर्स. तो वहाँ पे लाइक एक इसी का पोस्ट आया था, सो वहाँ से मुझे पता चलता. एंड इवन लाइक मेरी फ्रेंड ने भी लास्ट ईयर इसमें एनरोल थी वो, तो इसीलिए फिर मुझे पता था. लाइक फिर मैंने काफी थोड़ी रिसर्च करी इसके बारे में, एंड देन आई फाउंड इट कि लाइक हाँ बहुत ही अच्छा है ये. देन आई अप्लाइड एंड मैंने लास्ट ईयर मार्च में अप्लाई करा था. फिर अभी लाइक
बट अप्लाई करने के लाइक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। लाइक मैं तो अप्लाई करके भूल गई थी कि लाइक हाँ मैंने अप्लाई भी करा है। फिर उसके बाद इस ईयर में लाइक कब आया था, लाइक मई और जून में मुझे रिप्लाई होगा कि योर एप्लीकेशन इज सेलेक्टेड, एंड देन फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने एक टास्क दिया था। सो मैंने जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करा था, तो मुझे एक क्रड एप्लीकेशन बनानी थी, बेसिकली लाइक अ कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन जिसमें तुम अपने कॉन्टेक्ट डिलीट, ऐड एंड एडिट ये सब कर हम्म सकते हो। हम्म फिर मैंने वो बना के दिया, एंड देन एक हफ्ते बाद उनका एक Q&A सेशन हुआ था जिसमें उन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल के बारे में बताया था, एंड लाइक तुम्हारे लाइक इंट्रोडक्शन दिया था कि लाइक हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन टाइप। कैसे करते हैं। या एंड उसके बाद लाइक आफ्टर 10 days उन्होंने इंटरव्यू लिया, एंड लाइक इंटरव्यू सो चिल, लाइक 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है और लाइक काफी चिल होता है कि वो इंटरव्यू लाइक टेक्निकल ज्यादा टेक्निकल तो होता ही है, बट इट्स मोर लाइक दे वांटेड टू नो अबाउट योरसेल्फ कि लाइक तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या है, एंड लाइक तुमने अभी तक क्या क्या करा है, एंड लाइक हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू DPS। सो ये सारी चीजें होती है, लाइक तुम्हें अपने प्रोजेक्ट समझाने होते हैं उनको कि लाइक तुमने प्रोजेक्ट क्यों करा, एंड लाइक कैसे करा, क्या क्या डिफिकल्टीज थी, एंड ये सब। तो हाँ बेसिकली यही था। एंड लाइक हाउ कैन यू फाइंड अबाउट दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो लाइक तुम्हें एक्टिव रहना पड़ता है बेसिकली थोड़ा, लाइक लिंक्डइन पे भी। एंड मैं ज्यादातर कैसे देखती हूँ, लाइक अगर कोई मुझे इंस्पायर करता है कि लाइक हाँ मुझे ये बंदा लाइक मुझे इसके जो एक्सपीरियंसेस है, बेसिकली मैं लिंक्डइन पे जाती हूँ और लाइक तुम्हें उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे लग रहे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस देखो। लाइक मोस्टली व्हाट आई डू, लाइक मैं लाइक स्टार्टिंग से उनकी जर्नी देखती हूँ कि लाइक इसने स्टार्ट हम्म कहाँ से करा, एंड लाइक हाउ दे अप्लाइड ये वो करके, एंड देन फिर उसके बाद लाइक जैसे डिजिटल प्रोडक्ट, मैं किसी की प्रोफाइल पे गई, मैंने देखा कि डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल, एंड लाइक अभी वो कहाँ पे है, लाइक वो अच्छी जगह पे, तो फिर मैंने ये फाइंड करा कि डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल क्या है ये वो करके, एंड देन साइट पे जा करके फिर मुझे डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल के बारे में पता चला, ओ ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। एंड देन मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि करियर साइट्स पे जाता है एक न्यूज़लेटर होता है, अगर तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है तो तुम उस न्यूज़लेटर पे जाके लाइक आगे फर्दर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए लाइक अपनी ईमेल डाल सकते हो, लाइक अगर आगे कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो बता सकते हैं, लाइक ये कर सकते हो। और लाइक काफी कम्युनिटीज होती है लाइक फॉर बेसिकली वुमेन्स के लिए तो काफी होती है, लाइक एक GSC है, ग्रेस ऑपर सेलिब्रेशन, तुम उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक काफी कम्युनिटीज होती है लाइक वुमेन हू कोड दिल्ली, इन सब में लाइक तुम एनरोल कर सकते हो, जिससे लाइक काफी तुम्हें तरह तरह के बच्चे मिलेंगे, लाइक बहुत ही डाइवर्स बच्चे मिलेंगे, तो हम्म वो पोस्ट डालते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज के। सो या बेसिकली तुम्हें एक्टिव रहना पड़ता है। सो मतलब जो भी कॉलेज कम्युनिटीज हो या फिर मतलब थोड़े उससे बड़े लेवल पे भी कम्युनिटीज हो तो उनको ज्वाइन करो एंड उसमें एक्टिव रहो। एंड जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ही चांस है कि आप कुछ ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो या उसके बारे में जान सकते हो, राइट? हाँ एक्टिव रहो। प्रीरेक्विजिट्स में भी मतलब बेसिक अगर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए फिर तो वो बेसिक ही चीज़ें चाहिए होंगी ना, कोडिंग आनी चाहिए। एंड कोडिंग मतलब उसमें भी लाइक पर्टिकुलरली वेब डेव या कुछ ऐसा भी वो रिक्वायरमेंट रहता है या कुछ भी हो सकता है? मतलब इतना तो नहीं कि लाइक बस तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइक अगर तुम कोड कर सकते हो, लाइक उन वो खुद कहते हैं कि लाइक तुम एक ट्यूटोरियल देख के कोड कर, मतलब तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए, लाइक बेसिक जो टेक्निकल होती है बेसिक, अगर तुम्हें बेस उतना क्लियर भी होना आता है चाहिए तो तुम्हें। हाँ बेस क्लियर होना चाहिए। All right. So like this was an international opportunity, right? And there would surely be many Indian students जिनको थोड़ा inferiority complex रहता है या फिर वो confident feel नहीं करते speaking in English, right? So how can they improve and still get such opportunity? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन सब चीज को सोच करके लाइक पीछे नहीं हटना चाहिए कि लाइक मुझे इंग्लिश नहीं आती है वो करके। हाँ बट ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा वर्क, अगर तुम्हें पता है कि लाइक तुम्हारी इंग्लिश, लाइक मैं भी काफी फंबल करती हूँ और लाइक मेरी इंग्लिश स्पीकिंग भी लाइक इतनी अच्छी तो नहीं है, तो लाइक बस थोड़ा वर्क करना चाहिए। और लाइक इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, लाइक दे नो कि तुम नेटिव स्पीकर नहीं हो, और लाइक
तुम नेटिव स्पीकर नहीं और इंग्लिश बीइंग योर सेकंड लैंग्वेज, तो दे नो, और लाइक इन सब चीजों पे वो जज नहीं करते तुम्हें। लाइक अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो फर्स्ट वो तुम्हारी स्किल्स देखेंगे, या बस अपने इंग्लिश पे, और लाइक जो भी तुम्हारा लाइक अगर फियर है किसी भी चीज का, बस उस पर वर्क करो, और लाइक लाइक गो फॉर इट, लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। मतलब if you don't try then also it's a no, if even if you try then there's still a chance कि तुम select हो सकते हो, but अगर तुम apply नहीं करोगे then it is already a no. या So yeah, एग्जैक्टली। definitely go for it, try it. एंड बाकी हाँ, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुछ वीकनेसेस है तो डेफिनेटली उस पर काम करो थोड़ा। मतलब थोड़े एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे एंड डालने चाहिए भी टू ओवरकम दैट स्किल और इम्प्रूव दैट स्किल। बट हाँ, मतलब ऐसे अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत दिलाओ एंड उस वजह से अप्लाई करना मत छोड़ दो, बिकॉज यू नेवर नो हाउ योर लाइफ चेंजेस बाय अप्लाइंग इन वन ऑफ या सच अपॉर्चुनिटीज। वन मोर थिंग, लाइक तुम ये सोच रहे हो कि लाइक हाँ मेरे अंदर ये लाइक कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, फियर है, तो लाइक जब तुम सोच ही रहे हो ना इस चीज पे, लाइक तभी तुम लाइक एक स्टेप आगे बढ़ गए हो दूसरों से, लाइक जो नहीं सोच रहे अपने बारे में कि लाइक तो बस अपनी लाइक सारी जो भी तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज में सही नहीं हो, तो उस पे बस वर्क करो, और लाइक अपने फेलियर से और लाइक सक्सेस से तुम्हारी जितनी भी लाइफ में है, लाइक उन सारे एक्सपीरियंस को लेकर के हाँ आगे बढ़ो, और लाइक हमेशा नई स्किल सीखते रहो। या Yes. And how is the work-life balance and overall work environment at DPS? सो लाइक उनका वर्किंग एक्सपीरियंस लाइक काफी चिल है, एंड लाइक काफी लाइक चिल पीपल है वो लोग, एंड लाइक उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं टीम में काम करने के लिए, लाइक तुम्हें कैसे टीम में काम करना चाहिए, तो उनकी जो एक्टिविटीज होती है इन सबको इम्प्रूव करने के लिए वो काफी अच्छी होती है, एंड लाइक तुम्हारा ओवरऑल ग्रोथ जो होता है लाइक काफी ज्यादा होता है इसमें। तो मतलब इंडिया में यूजुअली टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस होता है एंड तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली काफ़ी ग्रो करती हैं, बट परहैप्स ओवरऑल ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होती। बट यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ पे ही पूरा फोकस होता है। मतलब जैसे तुमने बताया कि वो लाइक they enable you to have your thinking caps and think about your future as well as your current product. So ओवरऑल ही मतलब वो अपने एम्प्लॉयज की केयर भी करते हैं एंड उनकी प्रोग्रेस या सक्सेस के लिए भी एफर्ट्स डालते हैं अपने end. वहाँ पे लाइक ये होता है कि लाइक दे टेल यू टू बी ऑलवेज वल्नरेबल, लाइक अपने आप को हमेशा वल्नरेबल दिखाओ, लाइक कोई तुम्हें बोले कि यार मुझे ये नहीं आता, तो उनसे तुम ये मत बोलो कि तुझे इतना नहीं आता ये वो, लाइक उनको उसको बोलो कि लाइक हाँ मुझे भी नहीं आता, इवन दो तुम्हें वो चीज आती है, लाइक उससे हमें बोलना चाहिए कि लाइक कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट एंड सी कि लाइक क्या होता है। एंड इवन वो लोग ये भी कहते हैं लाइक अगर तुम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और लाइक तुम फेल हुए तो कोई बात नहीं, तुम फेल हुए उसमें भी तुम्हारा तुम्हारा माइंडसेट बना कि लाइक हाँ ये चीज फेल हो रही है, लाइक हमें ये चीज नहीं करनी, लाइक तुम्हारी फेलियर में भी तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, तो लर्निंग हो रही है, तुम सीखते तो हो ही हो कुछ ना कुछ। राइट। एंड ऑब्वियसली मतलब अगर तुम अपने प्रोडक्ट में एफर्ट्स डाल रहे हो तो ऑब्वियसली तुम कुछ नए स्किल्स भी सीख रहे होगे, है ना। एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हारा प्रोडक्ट फेल कर रहा है सो यू विल नो, आई मीन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड नो कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों फेल किया, एंड ऑब्वियसली उन चीज़ों को तुम रिपीट ना करो इन फ्यूचर, राइट। सो दैट एंड इन्हीं चीज़ों को, यही जो चीज़ें होती है ये मेन लर्निंग पॉइंट होते हैं व्हेनेवर यू फेल। सो yes, मतलब I agree with you in this context. And coming on to the next question, so what are your tips for interview? I mean, how do you suggest the people to represent themselves in an interview? सो लाइक फर्स्ट तो वो तुम्हें टास्क ही देते हैं, तो लाइक पहले ही उन्होंने तुमको जज कर लिया है लाइक तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स पे, और लाइक इंटरव्यूज इज टू नो योरसेल्फ कि लाइक तुम्हारी एक्सपीरियंसेस क्या है, और लाइक तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्या है, एंड लाइक they were also question on like low level system design. They will ask you like if you were given a like for example an e-commerce app, तो like तुम्हारे अप्रोचेस क्या क्या होंगे उस ऐप को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सो
तुम्हें लाइक मेक श्योर करना चाहिए यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, एंड लाइक you should show your experiences and your all the volunteering experience, like all the things that you have done in your like college life, and yeah, everything. And मोस्टली इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि लाइक तुमसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और लाइक तुम्हें नहीं आता, तो लाइक डोंट हेजिटेट, लाइक जस्ट शो देम कि या यू आर इंटरेस्टेड एंड लाइक यू आर यू आर ट्राइंग टू लाइक सॉल्व दैट क्वेश्चन, लाइक वो तुम्हारे अप्रोचेस देखेंगे कि तुम उसे एटलीस्ट तुम ट्राई कर रहे हो, और लाइक एफर्ट्स हाँ डाल रहे हो. एफर्ट्स डाल रहे हो, या बेसिकली. Yeah, and as well as have faith in yourself and be confident, because confidence is Yeah. really a major point in an interview. If you are confident, then it really gives a good impact over the interviewers, and hopefully you will get selected. Yeah, and just also show them like you are really interested in like digital product school, and like before interview, like if you are just search your track and like what they want. तो जैसे मेरा ऐसी ट्रैक था, तो लाइक जब मैंने सर्च करा तो लाइक आई फाउंड आउट कि लाइक जैसे मुझे पहले से रिएक्ट का थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ बिगिनर और इंटरमीडिएट के बीच में लाइक इतना एक्सपीरियंस था. So I think that is why I get an edge in that interview. And yeah, just search your track, like तुम किसके लिए apply कर रहे हो, और like थोड़ा company के लिए search कर रहे हो, और like उन्हें show करो कि like yeah, you are really interested and like how can you contribute to DPS. राइट. सो बेसिकली इंटरव्यू से पहले आपको एक आइडिया भी होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड वहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, बिकॉज ये एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, एंड ऑब्वियसली इफ यू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो एक कॉन्फिडेंस भी पोर्ट्रे होगा, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट एन एज कि हाँ मतलब ये बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तभी उसने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है आपकी कंपनी के बारे में, आपके ट्रैक के बारे में. So obviously this gives a good impact as well on the interviewer. So yeah. Yeah.